بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں چینل 24 نیوز کی لائسنس معطلی کے خلاف صحافتی تنظیمیں، سیاسی جماعتیں، لیبر تنظیمیں اور آل پاکستان کلیریکل ایسوسی ایشن سراپا احتجاج۔ ملتان یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے ملتان پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے چینل 24 نیوز کی لائسنس معطلی کے خلاف صحافتی تنظیمیں، سیاسی جماعتیں، لیبر تنظیمیں اور آل پاکستان کلیریکل ایسوسی ایشن سراپا احتجاج ہے۔ ملتان یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے ملتان پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے، ہم نہیں مانتے۔ چینل 24 کے لائسنس معطلی کے خلاف ملتان میں صحافتی، سیاسی اور سماجی تنظیمیں سراپا احتجاج بن گئی۔ پریس کلب ملتان کے بعد ملتان یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے میں صحافیوں، سماجی رہنماؤں، لیبر یونین کے عہدیداروں کی بڑی تعداد جمع ہوئی۔ مظاہرے میں پیمرا کے اقدام پر شدید نعرے بازی کی گئی۔ صدر ملتان یونین آف جرنلسٹ شکیل بلوچ کا کہنا تھا کہ پیمرا کا اقدام ناقابل برداشت ہے۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں صحافت کے لیے کام کرنے والے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، جو کہ ان کا معاشی قتل عام ہونے کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کو جو انفارمیشن فراہمی کا حق ہے اس سے بھی محروم کیا جا رہا ہے۔ پیمرا کی جانب سے جس طریقے سے 24 چینل پر پابندی عائد کی گئی اور اس کی نشریات بند کی گئی، اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ملتان جرنلسٹ اور تمام صحافی حلقے شدید مذمت کرتے اور احتجاج بھی کرتے ہیں کہ حکومت یہ وہ حکومت ہے جو پاکستان کے اندر کروڑوں نوکریاں دینے کا دعویٰ کر کے اقتدار کے اندر آئی تھی، لیکن جب سے موجودہ حکومت اقتدار میں آئی ہے اس وقت سے پاکستان کے ہزاروں صحافی جو ہے بے روزگار ہو چکے ہیں۔ پیمرا کی جانب سے اس کا لائسنس منسوخ کرنا انتہائی حکومت کا بزدلانہ فعل ہے۔ میں اس کی انتہائی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ دیکھیں، میڈیا پاکستان کا چوتھا ستون ہے اور جمہوری حکومت میں ہر شخص کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنی آزادی رائے کا اظہار کر سکے۔ احتجاجی مظاہرے میں شریک جنرل سیکرٹری ملتان یونین آف جرنلسٹ شفقت بھٹا، فائنانس سیکرٹری رانا عرفان اور الیکٹرانک کیمرامین ایسوسی ایشن سے تنویر گیلانی نے بھی پیمرا سے فوری طور پر فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ احتجاجی مظاہرے میں شریک جمعیت علماء اسلام کے نائب امیر نے پیمرا کے اقدام کو سچ کی آواز دبانے کے مترادف قرار دیا۔ 24 کی یہ جو بندش ہے یہ حق اور سچ کی آواز کو دبانے کے مترادف ہے اور غریب عوام کے جو مسائل ہیں 24 کی وساطت سے جو مؤثر حلقے تک پہنچتے تھے ان کو دبانے کی ایک سازش ہے۔ ہم ہر سطح تک جائیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیمرا پہلے کہاں تھا جب یہ چینل اس لائسنس پہ چل رہا تھا، اب جب ہزاروں لوگوں کی نوکریاں یہاں پہ دو پہ لگی ہوئی ہیں، ہم کسی صورت جو ہے نا اس کا لائسنس معطل نہیں ہونے دیں گے۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام خبریں ان کے مطابق دکھائی جائیں تو ایسا کبھی نہیں ہوگا اور یہ تمام نجی چینل پی ٹی وی چینل نہیں بن سکتے۔ 24 چینل حق سچ کی آواز پہ کھڑا ہوا ہے اور یہ ایسے ہی کھڑا رہے گا۔ ہم یہی مطالبہ کریں گے کہ اگر یہ لائسنس فوری طور پہ بحال نہیں کرتے تو ہم کیمرہ مین یونین ہم اس احتجاج کو وسیع کریں گے۔ احتجاجی مظاہرے میں سماجی رہنما ملک عمر گمبو، عمران یوسف، اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے ایپکا عہدیدار اجمل سیال، محمد ارشاد، ایپکا ایکسائز جنرل سیکرٹری نیاز ڈھلو، عمر علی ماہر، عامر علی گجر اور ابو بکر شریک تھے۔ احتجاجی مظاہرے میں کیمرامین ایسوسی ایشن سے ارشد گجر، طاہر عباس، آصف اقبال، چودھری خلیل، محمد رضوان، عامر شاہ، قرار حیدر اور عابد بلوچ اور دیگر شریک ہوئے۔ مظاہرے میں ینگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن سے مقصود چوہان، علی ریاض، عدنان یعقوب، عمیر علی خان، ملک عامر، زاہد جمال اور دیگر نے شرکت کی۔ کیمرامین زاہد جمال اور قرار حیدر کے ساتھ بلال نیاسی، ملتان۔ چینل 24 کی لائسنس معطلی کے خلاف ملتان میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے رہنما متفقہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کرنا ہے جسے پیمرا کے قوانین کی آڑ بنا کر منسوخ کیا گیا اور متاثرہ فریق کو اس حوالے سے کوئی سنوائی نہیں دی گئی ہے۔ جماعت اسلامی ضلع ملتان، پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی زعماء اور ذمہ داران حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چینل 24 کا لائسنس فوری طور پر بحال کیا جائے اور صحافیوں اور میڈیا کے نمائندوں اور ذمہ داران پر حکومتی دباؤ کو ختم کیا جائے اور اپنی نااہلی کا ملبہ میڈیا پر ڈالنے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ میں محترم جناب رانا شجاعت حسین صاحب سے بھی درخواست کروں گا جو کہ مسلم لیگ نون
کہ نائب صدر ہیں ملتان سٹی کے کہ وہ اپنی بات کریں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مذمت کرتا ہوں حکومت وقت کے اس اقدام کی. انہوں نے 24 نیوز کا جو لائسنس منسوخ کیا ہے اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے کہ انہوں نے ان کی خامیاں کوتاہیاں جو تھی، جو عرصہ ادوار میں جو انہوں نے کرپشن کی شکل میں جو ہے اس پاکستانی عوام کو جو دھوکہ دیا ہے اس کو اجاگر کرنا اور پبلک کو تک وہ پہنچانا جو ہے ان کا قصور ہے. اور اسی وجہ سے انہوں نے نا آزاد صحافت پر جو ہے جو انہوں نے شب خون مارا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور میں اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ اس کا خود نوٹس لیں اور آزاد صحافت پر جو انہوں نے شب خون مارا ہے ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے اور 24 نیوز کا جو ہے وہ لائسنس جو ہے وہ فی الفور بحال کیا جائے. جناب شاہد رضا صدیقی صاحب، رہنما پیپلز پارٹی ضلع ملتان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت اپنی پیپل پارٹی کی طرف سے اور میں بہت پرزور مذمت کرتا ہوں پیمرا کو اور یہ گورنمنٹ پاکستان سے کہ بھئی یہ جو اس نے یہ اقدام اٹھایا ہے، جو اس نے یہ اقدام اٹھایا ہے پیمرا کی طرف سے بھی میں مذمت پیمرا کو میں مذمت کرتا ہوں اور پیپل پارٹی کی طرف سے یہ مذمت کرتا ہوں کہ جلد سے جلد 24 چینل کا جو لائسنس منسوخ کیا گیا ہے اس کو بحال کیا جائے. اور یہ جو آزادی صحافت پر انہوں نے جو شب خون مارا ہے اس کو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اگر یہ جلد سے جلد بحال نہ کیا گیا ہم اس کا بھرپور احتجاج کریں گے. چودھری اطہر عزیز ایڈوکیٹ، جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی ضلع ملتان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موجودہ حکومت کھسیانے بلی کھمبا نوچے کے مذاق اپنی غلطیوں کا، اپنی ناکامیوں کا، بلکہ اپنی بددیانتیوں کا جو ملبہ ہے وہ میڈیا کے اوپر ڈال کر اپنی جان چھڑانا چاہتی ہے. اور اس کام کے لیے وہ میڈیا کے اوپر بیجا پابندیاں، صحافیوں کے اوپر بیجا پابندیاں اور اب پیمرا کی سیڑھی استعمال کرتے ہوئے ایک نیوز چینل کو 24 کو بند کرنے کا جو ان کا ایک پروگرام ہے، یہ حقیقت میں تو صحافت کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے. حکومت جتنی بھی کوشش کر لے اب اس کی جو بددیانتی لوٹ مار جو ہے وہ چھپ نہیں سکتی. میڈیا نے قوم کو جواب دینا ہوتا ہے. میڈیا چوتھا ستون ہے اور پوری 22 کروڑ عوام کی آواز ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ 24 نیوز کا جو لائسنس معطل کرنا ہے وہ 22 کروڑ عوام کی آواز کو بند کرنے کے مترادف ہے. جناب عثمان خان بابر صاحب، رہنما مسلم لیگ نون. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اب سب اپنے سارے دوستوں کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ حکومت ہوش کے نہ خون لے. یہ جو حکومت دعوے کرتی تھی کہ ہماری حکومت سکینڈل سے پاک ہے، روزانہ دن میں 4 ان کے سکینڈلز آتے ہیں. جو بھی ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ صحافی ہوں، کوئی بھی ہو، یہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے کبھی نیب کے ذریعے اور میڈیا کو پیمرا کے ذریعے یہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے خلاف کوئی آواز نہ بنے. 24 نیوز بیسیکلی عوام کی آواز بنا ہوا تھا، مسائل کو اجاگر کر رہا تھا جو بھی کرتا ہے. اسی پہلے کچھ اور چینل ان کو بھی انہوں نے دبانے کی کوشش کی اور حکومت کو ہمیں اس حکومت سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے. ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس حکومت کی ان اقدام پہ پیٹرول کی قیمتیں راتوں رات بڑھانا 25 سے 30 روپے لیٹر 1 گھنٹے کے اندر، یہ کہاں کا جائز ہے. اور ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو اپنا 24 نیوز کے اوپر جو صحافت پہ شب خون مارا گیا ہے اس کا فوری طور پہ نوٹس لیں اور اس کو بحال کیا جائے. آپ تمام صحافی حضرات کا بہت بہت شکریہ. چینل 24 کے لائسنس معطلی کے خلاف ملتان میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے رہنما متفقہ پریس کانفرنس کر رہے تھے.
आपको बताएं, न्यूज चैनल के लाइसेंस को मुअत्तल और 24 न्यूज की नशरियात गैर कानूनी तौर पर बंद करने पर फोर्डाबाद चोलिस्तान प्रेस क्लब के सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज बन गए। हक और सच की आवाज 24 न्यूज की गैर कानूनी बंदिश करके सच की आवाज दबाना चाहते हैं। इस पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे नुमान सईद। बिल्कुल हक और सच की आवाज़ बुलंद करने वाला चैनल 24 न्यूज़ को बंद कर दिया गया है पैमरा की जानिब से। दूसरी जानिब अगर बात करें तो इसका लाइसेंस भी जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। यहाँ पर फोर्डाबाद में भी सहाफ़ी बरादरी जो है वो शदीद एहतजाज कर रही है और प्रेस क्लब के बाहर जो सहाफ़ी बरादरी मौजूद है, हमारे साथ जो है सीनियर सहाफ़ी और सदर प्रेस क्लब मौजूद है अजीम साहब। जी सर, बताइएगा कि एक बार फिर से जो है सच और हक की आवाज़ को जो कि का गला दबा दिया गया है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम जो 24 चैनल है इसको बंद करने की शदीद मजम्मत करते हैं और पैमरा और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करें और फौरी तौर पर इस चैनल को बहाल किया जाए। हाँ जी बिल्कुल, जो है हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद थे जिनका कहना था कि इस चैनल को बहाल किया जाए। दूसरी जानिब हमारे साथ एक और सीनियर सहाफ़ी, इनसे जान दीजिए। सर बताइएगा कि इस चैनल को बंद कर दिया गया है, हक और सच की आवाज़ को दबा दिया गया है, क्या कहें? जी, बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 24 चैनल जो पैमरा ने बंद किया है इसको फौरी तौर पर बहाल किया जाए। इसने इलाकाई मसाइल जो बहुत से उजागर किए और बहुत से इन्होंने काम किए हैं, तो हम इस चैनल को खराज तहसीन पेश करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसको फौरी बहाल किया जाए। हाँ जी बिल्कुल, जो ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान सईद, आपने अपडेट किया। इस हवाले से दूसरी जानिब मुल्तान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं जुनैद अनवर। जी बिल्कुल, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कोरोना वायरस का शिकार और इस वक्त सेल्फ आइसोलेशन में मौजूद हैं। मुल्तान के अंदर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के हल्के की आवाम की जानिब से दुआया तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राना सजाद हमीद की जानिब से भी दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की गई है। बात भी करेंगे। जी वाकई मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे मुल्तान का फ़ख्र है, मुल्तान का क्या पूरे पाकिस्तान का फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कोरोना जैसी वबा से अल्लाह पाक हर मुसलमान को बचाए और हमारे मखदूम साहब को अल्लाह पाक जल्द सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। हमने इसीलिए दुआया तकरीब रखी है उनकी सेहत याबी के लिए और हम सब दोस्त दिली तौर पर उनके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह पाक उन्हें जल्द सेहत याब करे और दोबारा खारजा अमूर के वो सारे काम अपना खुद सर अंजाम दे। सब इसके साथ साथ बात करेंगे। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। हम सब दोस्त अहले इलाका सब इकट्ठे हुए हैं और सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। उनकी सेहत हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो भी कोरोना के मरीज हैं अल्लाह ताला सबको शफा दे। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। जुनैद अनवर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना में मुब्तला निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा की तबीयत रात गए अचानक बिगड़ गई। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा को सांस लेने में तंगी का सामना हुआ। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर प्रोफेसर मसूद रऊफ हिराज की जानिब से वाइस चांसलर की सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कोरोना में मुब्तला निजी अस्पताल में जेर इलाज वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा की तबीयत रात गए अचानक बिगड़ गई। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा को सांस लेने में तंगी का सामना। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर प्रोफेसर मसूद रऊफ हिराज की जानिब से वाइस चांसलर की सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील की गई। उनका मजीद क्या कहना था, आपको भी सुनवाते हैं। मुस्तफ़ा कमाल पाशा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं इस वक्त आइसोलेशन में हूँ, मेरे पास कोई आईसीयू नहीं है। चाय पी रहा हूँ, मौजें लूट रहा हूँ, तो इंशाल्लाह हफ्ते के बाद वापस आपके पास हूँ। तो दुआ कीजिए मेरे लिए, अल्लाह खैर करेगा, कोई परेशानी की बात नहीं। आपको बताएं, छुट्टी के दिन भी शहर मुल्तान तफरीही मकामात वीरान हो गए। कोरोना वायरस और जुज़वी लॉकडाउन की वजह से किला कोहना, कासिम बाग पार्क और दमदमा वीरान हो गया। अपडेट करेंगे ले रियाज।
जी बिल्कुल, आलमी वबा कोरोना वायरस और मुल्तान शहर में जो जुज़वी लॉकडाउन की सूरत-ए-हाल है, उसके पेश नज़र आज छुट्टी का दिन होने के बावजूद भी अगर जिक्र किया जाए मुल्तान शहर के मुतअद्दिद पार्कों का, तो उसमें मौजूद मुल्तान की सबसे अहम जगह किला कोना कासिम बाग दमदम है, और यहाँ पर मौजूद जो पार्क है बिल्कुल वीरान है। जब से कोरोना वायरस की वबा फैली है और जुज़वी लॉकडाउन की सूरत-ए-हाल है, तभी से इन पार्कों की जो रौनक है वो ऐसा लगता है कि मध्यम पड़ गई है। अगर चारों तरफ देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल वीरान और सुनसान जो पार्क हैं, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से वाज़ेह तौर पर अहकामात जारी कर दिए गए। PHA की तरफ से पार्क जो है वो सुबह के वक्त और शाम के वक्त खुले रहेंगे। तो अभी जबकि ये किला कोना कासिम बाग पार्क और जो दमदमा है ये 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन जहां पर भी शहरी ना होने के बराबर हैं। छुट्टी के दिन की मुल्तान के इस खास पॉइंट की खास बात यह है कि यहाँ पर शहरी जो है कसीर तादाद में आते हैं, अपनों के साथ फैमिलीज के साथ इंजॉय करते हैं। लेकिन एक तरफ जहाँ कोरोना वायरस से बचाव के SOPs को पर भी अमल दरामद करना है, तो दूसरी जानिब जो तफरीह मकामात हैं वो भी वीराने का सा मंजर पेश कर रही हैं। तो एक अजीब सी सिचुएशन है पार्क वीरान है। बहुत शुक्रिया अली, आपने अपडेट के इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब और पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी ने बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट को मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट के बयान को मुस्तरद करता हूँ। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं जुनैद अनवर। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के बहावलपुर सेक्रेटेरिएट बनाने के बयान के ऊपर मुल्तान से जो है वो मज़ामत का जो है वो सिलसिला शुरू हो गया। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब मेंबर सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी की जानिब से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट के बयान को मुस्तरद कर दिया गया है और शदीद तनकीद भी की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। नदीम साहब, बहावलपुर सेक्रेटेरिएट चला गया, मुल्तान के बेटों को मुबारक हो। सबसे पहले तो बहावलपुर सेक्रेटेरिएट की तो मैं कैटेगोरिकली एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान साहब के इस स्टेटमेंट को ना सिर्फ मुस्तरद करता हूं, बल्कि मैं शदीद अफसोस का इजहार करता हूं। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उनको गवर्नमेंट ने असाइनमेंट दी है। मेरी जाती तौर पर 22 मिनट की मीटिंग चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब से हुई। अभी आपने फरमाया ना कि मुल्तान के बेटे बिल्कुल मुल्तान के बेटे जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुल्तान के लोगों से वादा किया है और हमारा केस मेरिट पर है। मेरी सरदार उस्मान साहब बुज़दार साहब से मीटिंग हुई और उसके बाद मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब से टाइम लिया। वजीर खारजा है पाकिस्तान के, मुल्तान से मुंतखब MNA है, मुल्तान का एक ब्रांड है, पाकिस्तान के टॉप के चंद पॉलिटिशियन में शामिल है। मैं इस्लामाबाद उनके पास हाजिर हुआ और मेरा एक निकाती एजेंडा था साउथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में का मुल्तान में कयाम। मुझे उस्मान बुज़दार साहब ने भी बतौर चीफ मिनिस्टर ये हुक्म दिया और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी यही फरमाया कि फिल वक्त, क्योंकि भावलपुर के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, भावलपुर के वासी भी हमारे भाई हैं, हमारे लिए हमें उतने ही अजीज हैं, उनका क्लेम अपनी जगह पर। लेकिन मुल्तान की हिस्टोरिकल हैसियत, मुल्तान की ज्योग्राफिकल हैसियत, मुल्तान साउथ पंजाब की आबादी का 62% है। कल मैंने सारे फिगर्स लिए हैं, मुल्तान साउथ पंजाब का 70% रेवेन्यू मुल्तान से जनरेट होता है। मुल्तान तमाम साउथ पंजाब के लिए इजी एक्सेस है। तो कैसे हो सकता है कि मुल्तान के साथ ज्यादती की जाए, मुल्तान के लोगों के जज्बात का खून किया जाए, इतनी बड़ी हिस्टोरिकल अचीवमेंट में मुल्तान को साइड पे कर दिया जाए। तो मुझे दोनों लीडर्स ने CM पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। वो बड़े हम्बल, बड़े डाउन टू अर्थ और वो चीजों को समझते हैं बड़ा। उन्होंने भी फरमाया और मुझे शाह महमूद साहब ने भी फरमाया और फिर शाह महमूद साहब के 2 वीडियो बयान आए हैं, परसों भी आया और कल भी आया कि ये ड्यूअल सेक्रेटेरिएट है जो मुल्तान और भावलपुर में मुश्तरका काम करेगा। नदीम भाई, आपका एक जुमला था और बड़ा मशहूर भी हुआ कि मुल्तान के बेटे जिंदा है। आपने मुस्तरद भी किया एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के बयान को। मुल्तान शहर से तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया, 6 MNA दर्जन भर MPs तहरीक इंसाफ को मिले। अगर सेक्रेटेरिएट के हवाले से आपकी बात नहीं सुनी जाती, सेक्रेटेरिएट बहावलपुर में मुंतकिल होता है, तो मुल्तान के बेटे फिर क्या करने जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, आपको अल्लाह की जात से पुरुमीद रहना चाहिए। हम खुशगुमान लोग हैं और हम अच्छा गुमान रखते हैं। मुझे 100% यकीन है कि जिस लीडरशिप के साथ मुझे काम करने का मौका मिला वो दलील और लॉजिक पर बात को समझती है। यहाँ असल में हम वो उस बदनसीब फेज से गुजर रहे हैं कि हम दुनिया के हर काम पर पॉलिटिक्स करना समझते हैं कि ये हमारे लिए फर्ज ऐन है। इस वक्त हमारी दोनों सियासी जमातें जो अपोजिशन की है, PMLN भी और पीपल्स पार्टी भी, ये बाकायदा कंपेन कर रही हैं। मुल्तान के अगर अरकान असम्बली मुंतखब हुए और मुल्तान के लोगों ने उनको वोट किया तो मुल्तान के अरकान असम्बली मुत्तहिद है। एक भी रुकन असम्बली इस पॉइंट पर, इस एजेंडे पर कि मुल्तान शुड बी द कैपिटल ऑफ न्यू प्रोविंस ऑफ साउथ पंजाब, उसको कोई इख्तिलाफ नहीं है इस बात से। बहावलपुर सेक्रेटेरिएट जाता है, हर सतह पर मुखालफत करेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात समझता हूँ,
मैंने अपने मुल्तान का मुकदमा लड़ रहा है। जी बिल्कुल, तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब पार्लिमानी सेक्रेटेरिएट के बयान को मुस्तरद कर दिया गया है। जुनेद अनवर, आप हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, रहीम यार खान में जुगनू पार्क की मसरूफ सड़क टूट फूट का शिकार हो गई है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे, हादसात भी मामूल बन गए। अपडेट करेंगे आमिर भट्टी। रहीम यार खान में जुगनू चौक, जो कि एक मसरूफ चौक है शहर का, इससे करीब से गुजरने वाली जो रोड है वो अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। ये है वो रोड के मनाज़िर जिसमें आप देख सकते हैं कि कई फुट चौड़े, कई फुट जो लंबे यहाँ पे गड्ढे बने, और उसके साथ साथ ये कई इंचेस तक जो है गहरे भी हैं। यहाँ पे जो गुजरने वाले शहरी हैं उन्हें यहाँ पे शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उड़ती धूल होती है और इसके साथ साथ जो यहाँ पे हादसात हैं वो भी मामूल बन चुके हैं। अगर इस सड़क की बात की जाए कि ये कितनी अहम है, तो ये जुगनू चौक के करीब है। इसके साथ साथ यहाँ पे जिनाह पार्क है और इसके साथ साथ जो है रहीम यार खान शहर का, बल्कि जनूबी पंजाब का दूसरा बड़ा तालीमी इदारा गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज भी इससे चंद मीटर के फासले पर यहाँ पे जो है करीब है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे जब मामूल के दिन थे, कोरोना के दिन नहीं थे, तो यहाँ पे रोजाना की बुनियाद पे हजारों तलबा तलबात इस रोड से गुजरते थे, जिन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इंतजामिया की जानिब से इस सड़क की मरम्मत या फिर नए सिरे से बनाने के हवाले से ताहाल कोई भी अमली इक़दाम नहीं किए गए। जो शहरी हैं, इलाका मकीन है, जो मुश्किलात से दो चार है, उनका यही बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया। सवाल से आगे बढ़ेंगे। तौंसा शरीफ शहर में सफाई के मसले को मुस्तकिल हल करने का प्लान। तौंसा शरीफ म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से 1 करोड़ 57 लाख की लागत से जदीद मशीनरी खरीदी जाएगी। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे नुमाइंदा रूही अजमत बुस्तार। मैं तौंसा शरीफ म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे सफाई का जो मसला है शहर के अंदर गलियों मोहल्लों में, वहाँ पे जो मसाइल हैं, जो रक्शे हैं वो नहीं जा सकते, ट्रैक्टर ट्राली नहीं जा सकते। वहाँ के लिए वज़ीर पंजाब की जानिब से 2 मिनी टिपर जहाँ पे भेजे गए हैं, ये मोहल्लों में जाकर गंदगी उठाएंगे। ये एक नया तजर्बा है। इससे पहले छोटे रक्शे भेजे गए थे, लेकिन क्योंकि उनमें वो पावर नहीं होती थी, जिसकी वजह से वो नाकाम हो गए थे। जिसके बाद ये कैरी डब्बे आ गए हैं। मजीद के किस किस्म के डिमांड किए गए हैं सफाई के मसले को हल करने के लिए। असिस्टेंट कमिश्नर तौंसा मोहम्मद यूसुफ छीना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से उनसे जानते हैं, सर इनसे सफाई का मसला हल हो जाएगा और मजीद क्या क्या डिमांड की गई है वज़ीर पंजाब से इस हवाले से म्यूनिसिपल के मसले को हल करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जैसे आप देख रहे हैं कि मिनी टिपर्स आ गई हैं। ये चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब के स्पेशल ऑर्डर्स पे ये हमें कल रिसीव हो गई हैं। और इनके पीछे स्पिरिट ये है कि वहाँ जहाँ छोटी गलियाँ हैं, जहाँ पे हमारी बड़ी मशीनें नहीं जा सकती, वहाँ पे ये जाएंगी। और एक दरीना मसला जहाँ पे मैनुअल हम सफाई नहीं कर पा रहे थे, बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा रही थी, वहाँ पे ये जाएंगी और उनका एक दरीना मसला सफाई का होगा और तौंसा सिटी की ओवरऑल इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। इसके साथ साथ हमने तकरीबन सीएम साहब ने स्पेशली 1 करोड़ 57 लाख रुपए दिए हैं, जिसके अंदर हमने सारे ऑर्डर्स प्लेस कर दिए हैं और उनके हम मशीनें खरीद रहे हैं म्यूनिसिपल कमेटी के लिए। उसके अंदर हमारे 3 ट्रैक्टर हैं, ट्रालियाँ हैं, लोडर ट्रैक्टर है, फ्रंट ब्लेड ट्रैक्टर्स हैं, रिक्शे हैं हमारे पास। इसी तरह कंटेनर्स हम ख़रीद रहे हैं। इस वक्त आप देखते हैं कि शहर में बाज़ जगह पे गलियों के कोनों में कूड़ा करकट पड़ा होता है जो हमें उठाना पड़ता है। उसके लिए हमारे कंटेनर्स का सैंपल आ चुका है, उसको हम इंशाल्लाह 1 दिन में फ़ाइनल करके बाकी हमारा तैयार हो जाएगी 1 वीक के अंदर अंदर। और इंशाल्लाह ताला काफ़ी सारी मशीनें हमारी इसी वीकेंड पे आ जाएगी और उसको हम प्रॉपरली इंशाल्लाह ताला लॉन्च करेंगे। और इस तरह सीएम साहब की तरफ से काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर म्यूनिसिपल कमेटी के हवाले से। और जो चीज़ें भी आ रही हैं इंशाल्लाह ताला वो तौंसा की आवाम की खिदमत के लिए और शहर की सफाई के लिए उनको पुरस्कार लाया जाएगा। जी बिल्कुल, म्यूनिसिपल कमेटी के लिए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से 2 मिनी डंपर्स भिजवाए गए हैं। बहुत शुक्रिया अजमत बुज़दार, आप इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डेरा गाजी खान में ब्लॉक जे वाली मेन रोड को बनाने का काम शुरू कर दिया गया। सफाई अमले की जानिब से सड़क की सफाई शुरू कर दी गई। इसे पर मज़ीद तफसीलात से अपडेट करेंगे आशिर इशफाक। की शहरियों की आखिरकार सुन ही ली गई है और डीजी खान के जो रोड तामीर नहीं हुए थे, जहां पर बड़े बड़े गड्ढे थे, तामीर का शिकार थे, उनको बाकायदा तौर के ऊपर अब बाकायदा तौर के ऊपर तामीर का जो उनका काम है वो शुरू कर दिया गया है। ब्लॉक ए रोड को मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि अब ब्लॉक जे का जो रोड था जो तामीर ना हो सका था उसको भी बाकायदा तौर के ऊपर उसकी सफाई का जो अमल है वो शुरू कर दिया गया है और आने वाले 1-2 रोज के अंदर इसको भी मुकम्मल कर दिया जाएगा। शहर की इसी तरह से दीगर भी रोड है, उनका काम भी इंतजामिया की जानब से यही बताया गया कि बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा और शहरियों की जो मुश्किलात हैं उनको कुछ हद तक कम किया जा सकेगा, क्योंकि रोड
खराब होने के बाद जो लोग यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों की तादाद में गुजरते थे, उनके तमाम के तमाम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। खसूसी तौर के ऊपर जो बुजुर्ग अफराद थे या जो मरीज थे जो यहाँ से गुजरते थे, उनको खसूसी तौर के ऊपर मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब उनकी जो मुश्किलात हैं वो कुछ हद तक कम होगी, क्योंकि रोड की जो तामीर का काम है वो बाकायदा तौर के ऊपर शुरू कर दिया गया है और यहाँ पर भी तमाम जो अमला है, जो सफाई वाला अमला है, वो यहाँ पर पहुंच चुका है और ट्रक की जो सफाई है वो की जा रही है। और आने वाले 1-2 रोज के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर इस रोड को लूप करने 1-2 रोज में रोड को कारपेट करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आशिर अशफाक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। या मौजा वंछेरा कोट सुल्तान के मकीनों का बासर अफराद के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि बासर अफराद ने सरकारी रास्ते पर कब्जा करके मकीनों को महसूर कर दिया है। मुजाहिरीन का डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर से सरकारी रास्ता खुलवाने का मुतालबा सामने आया है। लिया से अपडेट करेंगे जाहिद सरफराज। बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ कोट सुल्तान में मौजा वंझेरा थल, यहाँ पर शरीह वाला के मकाम पर, जहाँ पर जो अहले इलाका है, मुतादिद बस्तियों के जो लोग हैं वैसे सरापा एहतजाज हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर सरकारी जो उनको रास्ता फराम किया गया था उस पर मुतादिद जो बासर शख्सियात उन्होंने उस पर कब्जा किया हुआ है। कुछ लोगों से बात करते हैं, भाई रसेसो क्या मुतालबा है, क्यों कब्जा किया था? ये कब्जा ये वजह से की से कि सरकारी सड़क कट्टी महकमा माल को सारे को सबूत है, लेकिन ये बासर लोग जो है सारा रास्ता बंद की थी पैन साकू नहीं आवन वजह दे कब्जा की थी पैन मकामी जिम्मेदार कब्जा किए मुख्तलिफ बंदे यानी कि चौधरी सरदार है, ईद उल बाद है, शायद भट्टे वाला है, बे विच कई काफ़ी सारे जिम्मेदार हैं जो कब्जा की पैन साकू रास्ता देने नहीं, बिल्कुल बंद की पैन। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि यहाँ पर बासर शख्सियात ने रास्ते पर कब्जा किया हुआ है और वहाँ से कब्जा होने की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं, मुतादिद बस्तियों के जो लोग हैं, बस्ती के अफराद, उनको गुजरने मुश्किलात का सामना है। भाई आप बताइएगा कि चाचू रस्से क्या मसाइल हैं, बताओ रास्ता ना होने पर क्या मसाइल है? सारे जी सड़क आंदी है सरकारी साकू जो कोई नहीं आवन देंदा, शुरू दिए सारे रास्ता मेहरबानी करके खुला के दिता वने गरीबों को बस। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये मुजाहिरीन का कहना है कि सरकारी रास्ता जो है बंद होने की वजह से उनको गुजरने के लिए बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। मुल्तान में सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। मुख्तलिफ मार्केट्स और बाजार में कीमतें भी मुख्तलिफ हैं। इस हवाले से अपडेट करें अपनी रिपोर्ट में नुमाइंदा रोही। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सब्जियों की मुख्तलिफ कीमतों ने शहरियों को परेशान कर दिया। सब्जी मंडी में टमाटर 100 रुपए से 120 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। अदरक 270 रुपए फी किलो, लहसुन 120 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगा। प्याज 35 रुपए किलो, लीमू 120 रुपए और करेला 50 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। गुलगश्त बाजार में अदरक 400, लहसुन 360, टमाटर 120 और टिंडे भी 120 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त हो रहे हैं। प्याज 60 रुपए किलो और गोभी 40 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। कैंट बाजार में टमाटर 120 रुपए किलो, प्याज 40 रुपए, लहसुन 240 रुपए किलो, जबकि अदरक 320 रुपए किलो मिलने लगा। मौसमी सब्जी भिंडी भी 80 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। टिंडे और गोभी 120 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली और बिलाल के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। आपको बताएं, रहीम यार खान में जमीन पर उगाए जाने वाली सब्जियों के रेट्स आसमान से बातें करने लग गए हैं। टमाटर 120 रुपए किलो, अदरक 350 और आलू 120 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। अपडेट करेंगे आमिर भट्टी। अमेरिका में जमीन पर उगाई जाने वाली सब्जियों की रेट्स अब आसमान पर बातें करने लगी हैं। सब्जियों के रेट्स की अगर बात की जाए अमेरिका में, तो टमाटर जो कुछ रोज कबल यहाँ पे 80 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा था, आज जो है 120 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसके फी किलो रेट्स में जो है 40 रुपए का इजाफा है। अदरक जो 300 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही थी, आज ये जो है 350 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। इसके फी किलो रेट्स में 50 रुपए का इजाफा है। लहसुन जो 130 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा था, आज 160 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसके फी किलो रेट्स में 30 रुपए का इजाफा हुआ है। लीमू की जो 100 रुपए एक सेंचुरी जो थी वो उसी तरह से बरकरार है, इसमें ना उतारा है ना इसमें चढ़ा हुआ है। इसके साथ साथ अगर भिंडी की बात की जाए तो भिंडी जो 50 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही थी, इसके फी किलो रेट्स में 50 रुपए का इजाफा हो गया, 100 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। टिंडे जो है वो 60 से जो है 80 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। फी किलो रेट्स में 20 रुपए का इजाफा देखने में आया। करेले जो 40 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किए जा रहे थे, आज 80 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किए जा रहे हैं। इसके फी किलो रेट्स में जो है 40 रुपए का इजाफा देखने में आया। सब्जी में जो 80 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही थी, आज 100 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की गई। इसके फी किलो रेट्स में 20 रुपए का इजाफा देखने में। इसके साथ साथ आलू की अगर बात की जाए, आलू 80 से 120 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसके फी किलो रेट्स में 40 रुपए का। सब्जियों के रेट्स में इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया इस हवाले से। लोड शेडिंग की वजह से घरों में खवातीन सख्त परेशान है। शदीद गर्मी की वजह से छुट्टी के रोज घर में रहना मर्द हजरात के लिए मुश्किल हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए।
मुल्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 7 घंटे होने की वजह से शहरी शदीद परेशान। घरों में खवातीन और बच्चे शदीद गर्मी की वजह से बीमार पड़ने लगे। खवातीन का कहना है कि या तो बिजली होती नहीं है और अगर होती है तो वोल्टेज इतने कम आते हैं कि चीजें खराब होने का खदशा होता है। 4 से 5 घंटे कंटिन्यूअसली जब लाइट जाती है, पानी का मसला बन जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं वो काम करना छोड़ देती हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे गुजारा करना। और जब लाइट आती है 5 घंटे के बाद इतने कम उसके वोल्टेज होते हैं, ट्रिपिंग होती है। उस ट्रिपिंग की वजह से हमें डर लगा रहता है कि कभी फ्रिज ना उड़ जाए, कहीं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के बरकी आलात वगैरह खराब ना हो जाए। दूसरी जानिब छुट्टी के दिन घर में मर्द हजरात भी परेशान दिखाई दिए। कहते हैं हुकूमत फौरी तौर पर लोड शेडिंग खत्म करे। ऑनलाइन आज तो हमारी क्लासेस भी चल रही हैं, जब नेट नहीं होता है तो ऑनलाइन क्लासेस भी हम नहीं ले सकते। लोड शेडिंग की वजह से बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी मुतासिर होने लगी। कहते हैं जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए बैठते हैं वैसे ही बिजली चली जाती है, हमारी पढ़ाई मुतासिर हो रही है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का 74वां सिंडिकेट इजलास हुआ, जिसमें 5 अरब 38 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट मंजूर कर लिया गया। यूनिवर्सिटी के लिए फैकल्टीज और शोबाजात में इजाफे की मंजूरी के साथ सहाफियों के बच्चों के लिए हर सेशन में 2 स्कॉलरशिप्स की मंजूरी भी दे दी गई। सिंडिकेट का इजलास इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब वाइस चांसलर की ज़ेर सदारत अब्बासिया कैंपस में मुनक्किद हुआ। इजलास में डॉक्टर मोहम्मद अफजल मेंबर पंजाब असेंबली, प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, प्रोफेसर डॉक्टर साइका इम्तियाज आसिफ वाइस चांसलर गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर, प्रोफेसर डॉक्टर हमीद रजा सिद्दीकी, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमजद, प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर, सुमेरा मलिक, डॉक्टर हाफिज हैदर अली नुमाइंदा सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब, शहजाद अख्तर मलिक नुमाइंदा सेक्रेटरी फाइनेंस पंजाब, डॉक्टर गुलाम हसन अब्बास एसोसिएट प्रोफेसर, खलीलुर रहमान असिस्टेंट प्रोफेसर, कलसूम अख्तर लेक्चरर, प्रोफेसर डॉक्टर अबू बकर खजानादार और प्रोफेसर डॉक्टर मौजम जमील शरीक हुए। रहीमिया खान से अपडेट करेंगे आपको। रहीमिया खान, खानपुर अड्डे पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का क्रैकडाउन जारी है। इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं आमिर भट्टी। के खानपुर अड्डे पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का क्रैकडाउन जारी है। इसी हवाले से जानते ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से बताएगा कि कौन कौन से जो मोटरसाइकिल सवार ये ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई अमल में ला रहे हो। आज के दिन की कार्रवाई के हवाले से बताएगा। हमने ये जो डबल सवार आ रहे हैं या जिन्होंने मास्क नहीं पहने हुए उनके चलान कर रहे हैं। ये जो कम उम्र बच्चे हैं, आपके सामने मैंने चलान किए हैं इनके। ये जो कम उम्र बच्चे ड्राइविंग करते हैं उनको हम चलान करके उनकी गाड़ियां बंद कर रहे हैं। ये एसओपी के खिलाफ जो भी कोई कार्रवाई खिलाफ वर्जी करता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये भी बताइए जो लोग मास्क नहीं पहनते क्या आप उन्हें जुर्माना कर रहे हैं? अगर जुर्माना नहीं कर रहे तो क्या उन्हें अवेयरनेस भी दे रहे हैं? हाँ, हम जो जिन्होंने मास्क नहीं पहने, जिनको नहीं पता, हम उनको कहते हैं कि आप मास्क पहने। मास्क अपनी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़रूरी है। हमने भी पहने हुए हैं, लोगों को भी कहते हैं कि आप मास्क पहने। वो मास्क पहनते हैं, हमारी बात पे अमल कर रहे हैं वो। यहाँ पे जो लोग ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं करते उन्हें जुर्माना। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताया अमीर जमाते उलमा इस्लाम फे मौलाना फजलुर रहमान जतोई में ज़िले अमीर जमात इस्लामी साहबजादा मौलाना याहिया अब्बासी की रिहाइशगाह पर पहुंच गए। अमीर जमात उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का फूलों की पत्तियों से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अमीर जमात उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान अहम उमूर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। अमीर जमात उलमा इस्लाम फे मौलाना फजलुर रहमान जतोई में ज़िले अमीर जमात उलमा इस्लाम साहबजादा मौलाना याहिया अब्बासी की रिहाइशगाह पर पहुंच गए। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान में गर्मी से सताए शहरियों ने गर्मी को दूर भगाने के लिए आलू बुखारे की शरबत की दुकान का रुख कर लिया है। इसी हवाले से अपडेट कर रही हैं अलिशबा आसिफ। गर्मी से सताए शहरियों ने आलू बुखारे का जूस पीने के लिए सड़क किनारे लगी दुकान का रुख कर लिया है। गर्मी में कोई अगर सस्ती और ठंडी चीज मिल सकती है तो वो आलू बुखारे का जूस है। 30 रुपए की बोतल जो है यहाँ पे दस्तयाब है। शहरी आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, घर वालों के लिए भी और खुद भी ले रहे हैं। जी बताइएगा कहाँ से आए? बिहाड़ी चौक। तो बताइएगा जूस कैसा है? अच्छा है, सस्ता है और अच्छा है गर्मी की वजह से।
جی بالکل، یہاں پہ جو ہے شہریوں کی بڑی تعداد آتی ہے اور جوس لے کر جاتی ہے. رش لگا رہتا ہے کیونکہ یہ سستا ہے، جگر کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. ملتان کی شدید گرمی میں اگر گرمی سے بچنے کے لیے کوئی سستی سی چیز مل جائے تو وہ آلو بخارے کا جوس ہے، اور لوگ جو ہیں اسے نعمت سمجھ کے لے رہے ہیں، یہاں پہ پی بھی رہے ہیں اور گھر والوں کے لیے بھی لے کے جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ لشبہ، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے.